Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon दबाइए, Adda247 की सारी notifications पाइए. Adda247, government job in your pocket. Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on a session where we will not be discussing one particular topic but a combination of different types of questions. So as you know, the heading is miscellaneous, so is our video will be. So you'll have first cloze test in which you'll get 5 questions. 5 questions, I hope you understand the meaning of it. That means you'll have one paragraph. In that paragraph, you will get 5 blanks. And for each blank, you will get 5 options, right? So the first part of this video will be about cloze test. The second question that we'll discuss is your fill in the blanks. Fill in the blanks. Now see, fill in the blanks could be of a lot of types, like बहुत सारे patterns हो सकते हैं, like single fillers हो सकता है, double fillers हो सकता है, triple fillers हो सकता है, जो कि हमने आज सुबह ही solve किया है, right? So we have solved certain patterns or single, double and triple fillers in the previous video. आज सुबह की video में हमने solve किया, but fill in the blanks जो है, यहाँ पर you'll get one statement. One statement will have one blank, and for each blank you'll get 5 options. Obviously, cloze test and fill in the blanks, both of these are dependent 80% on vocab and 20% on your grammar. And obviously you need to identify the tone of the sentence as well. आपको sentence की और paragraph की tone भी पता होनी ज़रूरी है, so that आप eliminate कर सके कौन सा word लग सकता है, कौन सा word नहीं लग सकता. Which word can be placed and which word can be eliminated or avoided to use in the sentence, right? After this, the last question that you'll have will be of rearrangement, right? So rearrangement, in this question you will have 5 to 6 sentences, rather I would say 6 sentences given all in all jumbled form, पूरी तरह से jumbled form में होगा. You have to rearrange all the sentences to make a meaningful paragraph out of it. So obviously 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये हो गया. You have 15 marks for today's test. तो आज I would suggest ये सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के लिए नहीं है, SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क के लिए नहीं. This video will be of SSC as well. ठीक है, तो SSC में भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी. Apart from this, rearrangement का जो पैटर्न है वो SSC में नहीं आता है. Other than that, cloze test और fill in the blanks का जो पैटर्न है, that is asked in SSC and that is asked in clerk as well. ठीक है, तो I hope you've got the 3 patterns that we'll be solving today. So this video will be helping out a lot of students, no matter you prepare yourself for banking or you prepare yourself for SSC. So with this, the first thing that we are going to solve is cloze test. For cloze test, I've told you certain things that you need to keep in mind, and those are whenever you get a paragraph, जब भी आपके पास एक paragraph होता है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है. The first thing that you need to do in cloze test is, without answering the question, read the whole paragraph. That's already told to you, right? And this applies to fill in the blanks as well. ठीक है, कि बिना आंसर को मार्क करे, you have to read the sentence. Try to find out the tone of this paragraph or passage. Once you get the tone or the theme of the passage, what happens is you can identify which vocabulary will be used and which can be avoided. मतलब अगर positive tone है तो positive vocab use होगी, negative tone है तो negative vocab use होगी. अगर positive tone है तो words जितने भी negative हैं वो सारे eliminate कर दिए जाएंगे, right? So what happens is you need to identify the tone, then the vocabulary. After this, take note of 2 things, that is grammar and nuances. That means nuances mean choosing a better vocabulary. For example, I've already told you, when you have, for example, you have undertaken and dominated, right? Undertaken and dominated. Both words kind of mean the same, but you have to choose a better vocabulary. In that case, you will choose what? You will choose dominated. If you have fundamental and basic, you will choose fundamental. Nuances is something that defines choosing a better vocabulary, choosing a better word. And then you have grammar part. This will also help you in solving the questions related to cloze test and fill in the blanks. As I said, 20% grammar bhi apna role play karega. Wherever a blank is given, just
try to identify what is given before the blank and what is given after the blank. Once you identify what is given before and after, you can easily find out what word can be placed in the blank. How will grammar help you out? For example, we have with written over here. Now you have certain options which do not go with. कुछ options आपके पास ऐसे दिए गए हैं जो with के साथ लगते ही नहीं है, so you can easily eliminate them. या फिर आपके पास options में कुछ आपको ऐसे words पता है जो with के साथ place हो सकते हैं, तो उनकी possibility ज़्यादा हो गई. Similarly, if you have an adverb here, that's obvious कि यहाँ पे verb लगाओगे या adjective लगाओगे, right? अगर यहाँ पर adjective दिया हुआ है, that's obvious कि यहाँ पर noun use होगा. So grammar will also help you out in solving the questions related to closed test and fill in the blanks. Got it? And if the subject is singular, the verb used will be singular as well. अगर आपके blank में subject आपका singular दिया है और उसके बाद एक blank दे दिया है to fill in the verb. So what will happen? You have 5 options to select from. Now what will you do? You can choose any of these 5 options, but the grammar needs to be corrected, right? So you have to select the subject, you have to mark the blank only according to the nuances and grammar and the vocabulary that you follow. For solving the high frequency words या फिर high frequency words को कैसे learn करें, this is the basic and the major question actually. ये question जो है ये कैसे handle किया जा सकता है? I would suggest कोई भी बड़े से बड़ा word हो, कोई भी बड़े से बड़ा word हो, if you know the root words of these words. For example, सुबह मैंने आपको बताया था androgynous का मतलब क्या होता है. Andro means male. Gyne means female. OUS is an adjective, right? Similarly, अगर हम आपको ये बोल दें anthropologist, so what will happen? You know anthropo, that means human, right? Logy is related to study and IST defines a person. तो चाहे कितना ही high frequency का word क्यों ना हो, if you know the root word, you can easily identify the meaning of any word. So for me, I would suggest that you should learn the words using root words. That would help you out in a better way. So anthropologist, who is this person? This person is a man or anyone who studies humankind, who studies mankind. That is an anthropologist, right? Similarly, if you write logy, that will become the study, right? So if you know the root words, you'll be able to find out the meaning of any word. So to crack closed test, fill in the blanks, synonym, antonyms, you will be easily solving them if you learn root words, if you learn vocabulary through root words. And the last is rearrangement. I have already told you 2 tricks to solve rearrangement. The first part is elimination method. Try to identify the first sentence, then the central part, and then the last part. 3 steps come in elimination method. After that, उसके बाद क्या होगा आपके पास, you have one more method, that is logical pair, and in some questions you have to apply both. पहले होगा एलिमिनेशन मेथड जहाँ पर पहला आइडेंटिफाई करो, फिर सेंट्रल पार्ट में क्या आएगा, फिर लास्ट पार्ट में क्या आएगा, तो 3 स्टेप्स आते हैं एलिमिनेशन में. इसी तरह से लॉजिकल पेयर भी लगा सकते हो आप. लॉजिकल पेयर में स्टेटमेंट है तो उसका एग्जाम्पल एक साथ लगाओ, नाउन है तो प्रोनाउन साथ में लगाओ, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन साथ में लगाओ. सो दिस इज हाउ वी डू इट. और कुछ क्वेश्चंस में आपको दोनों स्ट्रैटेजीज एक साथ लगानी पड़ेंगी. So closed test, fill in the blanks and rearrangement, these are the 3 questions that we are about to solve. And as you all know, जो भी tricks or tips मैं बता रही हूँ, that will be very important for you. Okay, so let's begin with this and have our first question on screen, that is closed test. So as I said कि paragraph सबसे पहले पढ़ना है बिना answer mark करे. So let's read the paragraph first. It says Jamshedji Tata is dash to be the pathfinder of modern industrious builders. कह रहे हैं जमशेदजी टाटा जो थे वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिल्डर्स के पाथ फाइंडर थे. दैट मीन्स ये जो इंडस्ट्री बिल्डर्स के लिए जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस इट. देन ही इज़ नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री फॉर हिज एक्यूमेन एंड एंथुसियाज्म. उनको ग्रैंडफादर मतलब दादा, पापा भी नहीं, उनको दादा माना गया है कि इंडियन इंडस्ट्री में, बिल्डर्स की इंडियन इंडस्ट्री में उन्होंने कितना ज़्यादा एंथुसियाज्म, एनर्जी दिखाई है, एंड ही इज सो सक्सेसफुल राइट नाउ. सो नोबडी एल्स कुड हैव डैश ऑफ न्यू इंडस्ट्री स्टार्टेड बाय जमशेदजी एट द टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल डैश एंड रेवोल्यूशन वाज येट टू कम टू इंडिया. कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था जो भी उन्होंने नई इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचा था, जो भी नई इंडस्ट्रीज़ उन्होंने स्टार्ट करी थी, और ऐसे समय में जहां पर इंडिया में अभी भी रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल क्या आना बाकी था. जमशेदजी's फादर नरसिम्हाजी टाटा यूज्ड टू ट्रेड इन जूट विद चाइना एंड ब्रिटेन. अच्छा, जमशेद जी के जो पिता थे नरसिम्हाजी टाटा, ये चाइना और ब्रिटेन के साथ क्या करते थे,
ट्रेड करते थे, मतलब बाइंग एंड सेलिंग वाज देयर, और किस चीज़ का, जूट का। ही स्टार्टेड डैश फ्रॉम इंडिया, उन्होंने क्या चीज़ स्टार्ट किया इंडिया से। जमशेद जी स्टार्टेड अ क्लॉथ मिल इन नागपुर मोर दैन 100 years ago। जमशेद जी ने 100 साल पहले क्लॉथ मिल स्टार्ट करी थी नागपुर में। 100 साल से भी ज़्यादा पहले बोला है। एट दैट टाइम ऑलमोस्ट ऑल द डैश यूज टू कम फ्रॉम लैंकाशायर इन इंग्लैंड, और कह रहे हैं उस समय में ऑलमोस्ट सारी चीज़, किस चीज़ की सारी चीज़ की बात कर रहे हैं, उस समय में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कहाँ से आती थी, इंग्लैंड के लैंकाशायर एक सिटी होगी या स्टेट होगा, वहाँ से आती थी। What जमशेद जी डिड वॉज प्रेजवर्दी, और जो भी जमशेद जी ने किया वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजवर्दी था, मतलब कि उसको प्रेज करने लायक था, उसकी प्रशंसा करने लायक था। दिस इज़ वॉट वी आर रेफरिंग टू। सो ऑब्वियसली वी हैव आइडेंटिफाइड द टोन ऑफ द पैसेज एंड दैट टोन इज़ पॉजिटिव इन नेचर। अगर पूरा टोन पॉजिटिव है, सो द वोकैबुलरी दैट विल बी सिलेक्टिंग विल बी पॉजिटिव एज वेल। अगर पूरा टोन पॉजिटिव है तो जो वोकैबुलरी हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, एंड हियर इट इज। जमशेद जी टाटा इज डैश टू बी द पाथ फाइंडर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियस बिल्डर्स। मॉडर्न इंडस्ट्रियस बिल्डर्स के लिए जमशेद जी टाटा क्या माने गए हैं? पाथ फाइंडर, इज अग्रीड टू, is empowered to, is determined to, is considered to, or is rewarded to. Now as I told you, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, whenever we have a blank you need to identify what is given before it and after it, है ना? उससे पहले क्या दिया हुआ है और उसके बाद में क्या दिया है। So here you have a verb, is, right? And after that you have to. So the first option is agreed. अग्रीड टू समबडी होता है, अग्रीड विथ समबडी होता है, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, अग्रीड टू बी। टू तो लगा है लेकिन उसके साथ बी का यूज भी हुआ है, दैट मीन्स इट इज एन इन्फिनिटिव एंड विच सेज दिस इज अगेन अ वर्ब। तो अग्रीड टू बी, ये जो टू यूज हुआ है, दिस इज यूज फॉर बी एंड नॉट द वर्ड दैट विल बी फिल्ड इन द ब्लैंक। जमशेद जी टाटा इज अग्रीड टू बी, अग्रीड नहीं किया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था जो हम अग्री कर रहे हैं उसके साथ? नो, नोबडी आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, सो वी कैन नॉट यूज द वर्ड अग्री। देन इज एम्पावर्ड टू बी द, एम्पावर किया गया है, क्या उनको कहीं और से ये पावर मिली है, कहीं और से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है? नहीं, ही हैज़ हिमसेल्फ मेड इट, उन्होंने खुद ये चीज़ बनाई है, राइट। सो सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। देन से इज डिटरमाइन, उनको डिटरमाइन किया जाता है, सो वी कैन यूज द वर्ड डिटरमाइन, डिटरमाइंड to be the pathfinder, and then we have considered, considered का यूज किया, and last word is rewarded। देखो reward का मतलब होता है whenever you do something and earn out of it, जब भी आप कुछ करते हैं और उससे आपको मिलता है, कोई चीज़ मिलती है, then we use the word reward, but reward cannot be placed here because we are not getting anything in hand, हमारे पास कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, but he is given the title। और जब हम title का यूज करते हैं, whenever we use the word title, right, whenever we use title anywhere, then in that condition somebody is considered to be that. For example, if we refer to, he is considered as the best dancer in the town, that means what? He is considered as the best dancer in the town, that means you are using considered, you are giving that title, the best dancer's title, to that person, right? So here we are referring to, whenever we refer somebody as his title, or when we give टाइटल टू समबडी, जब हम किसी को टाइटल देते हैं तो हम कंसिडर का यूज करते हैं, डिटरमाइन का यूज भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द परफेक्ट वर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी जमशेद जी टाटा इज considered to be the best or to be the pathfinder of modern industries builders. He is known as the grandfather of the Indian industry for his acumen and enthusiasm, right? Now let's move on to the second question. Second question says, nobody else could have dashed of the new industry started by Jamshed ji at the time when industrial dash and revolution was yet to come to India. कह रहे हैं कोई भी ये नहीं कर पाता अपनी नई इंडस्ट्रीज़ के लिए जो जमशेद जी ने ऐसे समय पे स्टार्ट करी जहां पर इंडिया में अभी भी इंडस्ट्रियल क्या और रेवोल्यूशन आना बाकी था. So it was yet to come, the revolution was yet to come, the industrial growth was yet to come, but then he did it. उन्होंने रेवोल्यूशन से पहले ही अपनी नई इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया. So nobody else could have done what? Could have thought of the new industries, could have ventured new industries, set of the new industries, planned of the new industries, absorbed. Okay, fine. As I told you,
identify what is given before and after the blank. When I say before, have is written, right? Could have done, whatever. Whenever you use have, we can use verb's third form here, right? जब भी आप have का use करेंगे उसके साथ verb का third form लग सकता है. Which says ventured, set, planned, absorbed. सब कुछ possible है. Everything is possible. Ventured भी possible है. Ventured can be placed. Set can be placed. Planned can be placed. Absorbed can be placed. Why? Because everything is given in verb's third form. But what is given after the blank is of. Of is something that defines possession. अगर आप अधिकार दिखा रहे हो, अगर आप अधिकार बता रहे हो, so what happens is possession किसी का किसी चीज से दिखाया जाता है, किसी का किसी चीज से दिखाया जाता है. That means noun here and noun here. After of we have new industries, right? After of we have new industries, which is a noun. But before of, that means here we have to place a noun as well, which means ventured means that you are adjoining yourself to somebody, you are signing a venture with somebody, so that means that is not a noun. If we say set, again that's not a noun. Planned is also a verb, absorbed is also a verb. With this condition, have can follow verb's third form. Have के साथ verb की third form तो लग सकती है, लेकिन उसके बाद of दिया हुआ है, ये अधिकार की बात कर रहा है, जिसका मतलब इससे पहले और बाद में दोनों जगह पर noun होना ज़रूरी है. और इसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर बचता है. We are left with only one answer. Why? Because thought, the word thought itself is a noun. और ये verb भी है, right? Noun भी है और verb भी है. Nobody else could have thought of the new industries started by Jamshed ji at the time when industrial dash. अब industrial क्या आ रहा था? Obvious ही बात है, you have a dash, before this you have industrial, right? Before this you have industrial. Industrial is an adjective. The noun for industrial is industry, right? The noun for industrial is industry, but industrial itself is an adjective, so a blank after it means that you need to place a noun here. इसके बाद का जो noun है या इसके बाद का जो blank है वो define करता है कि आपको noun लगाने की ज़रूरत है. With this, let's move on to the third question and see क्या दिया हुआ है वहाँ के options. So it says industrial acts, industrial machinery, industrial awakening, industrial factories या industrial imports. कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल क्या आना बाकी था, इंडस्ट्रियल क्या आना बाकी था और रेवोल्यूशन भी आना बाकी था. रेवोल्यूशन मीन्स व्हाट? रेवोल्यूशन का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. A lot of things will change, right? This is what we define by revolution and this will change for the good of it. रेवोल्यूशन आएगा तो चीज़ें चेंज होगी और चेंज होने के साथ साथ वो चीज़ अच्छे के लिए चेंज होंगी, राइट? सो क्या कह रहे हैं? डैश एंड रेवोल्यूशन वाज येट टू कम टू इंडिया. रेवोल्यूशन आना बाकी था. इंडस्ट्रियल एक्ट्स आने बाकी थे. आर वी रेफरिंग टू एक्ट्स? एक्ट्स तो पहले से ही थे, इंडस्ट्री बनती नहीं अगर इंडस्ट्रियल एक्ट ना होता, राइट? तो एक्ट्स तो पहले से ही थे, आना बाकी था, दैट वाज येट टू कम, तो एक्ट्स नहीं हो सकता. इंडस्ट्रियल मशीनरी आनी बाकी थी. विदाउट मशीनरी एंड इंडस्ट्री कैन नॉट वर्क, राइट? एक इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती बिना मशीनरी के. सो मशीनरी वाज ऑलरेडी देयर. अवेकनिंग, अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? अवेकनिंग डिफाइंस व्हेन समबडी नीड्स टू बी अवेयर ऑफ सम थिंग्स. किसी को जब कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं कि अवेकनिंग आनी बाकी थी, सो मे बी पीपल वो वर्किंग लाइक कुछ लोग काम कर रहे थे. पहले क्या होता था, अगर कपड़ा बनाना होता था तो कपड़ा कैसे बनता था? लोग उसको हाथ से, लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए थ्रेड्स को इधर से उधर ले जाते थे और तब क्या होता था, वो क्लॉथ बनाया जाता था. बट अब क्या हो गया है? इंडस्ट्रियल अवेकनिंग के थ्रू, मतलब अब लोगों को पता चल गया दिस कैन बी डन इन एन ईजियर वे. सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर अवेयरनेस की बात हो रही है. तो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस अभी भी आनी बाकी थी एंड रेवोल्यूशन भी आना बाकी था, वाज येट टू कम टू इंडिया. इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज तो लग नहीं सकता. और इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स आने बाकी थे, नहीं. इंडस्ट्रियल अवेकनिंग आने बाकी थी. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आंसर नंबर 3 ही होगा. अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. Jamshed ji's father, Nasirwanji Tata,
used to trade in jute with China and Britain. जमशेदजी के जो पिता थे वो चाइना और ब्रिटेन के साथ जूट में डील करते थे. He started dash from India. उन्होंने इंडिया से क्या स्टार्ट कर दिया? He started industries from India, import from India, trade from India, dispatch from India या export from India. इंडिया से कुछ कर रहे थे ना, है ना, इंडिया से कुछ कर रहे थे. अब देखो, अगर हम कहते हैं ही जो यूज हुआ है, द ही दैट इज यूज्ड हियर इज ही इज फॉर चाइना और ब्रिटेन के साथ कौन डील कर रहा था? दिस इज फॉर द फादर, राइट, दिस इज फॉर द फादर. अब कह रहे हैं कि वो जूट में ट्रेड करते थे चाइना और ब्रिटेन में. तो जूट बनता कहाँ था? जूट बनता था इंडिया में. जूट बनता कहाँ था? जूट बनता था इंडिया में. ही स्टार्टेड डैश फ्रॉम इंडिया. इंडिया से क्या करने लग गए वो? इंडस्ट्रीज करने लग गए. ही स्टार्टेड इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंडिया. नहीं, इंडिया इन, अगर ऐसा होता ही स्टार्टेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, दैट वुड हैव बीन करेक्ट. ही स्टार्टेड इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया. तो क्या फादर इंडिया में ही रह के इंडिया से इंपोर्ट करेंगे? नहीं, इंपोर्ट इज ऑलवेज डन व्हेन यू इन्वॉल्व अनदर कंट्री और वहां से लाने की बात हो. सो ऑब्वियसली बात है कि जूट को जूट से थोड़ी इंपोर्ट करेंगे, इंडिया से थोड़ी इंपोर्ट करेंगे. इट वॉज ऑलरेडी देयर. फिर ट्रेड फ्रॉम इंडिया, ट्रेड चाइना और ब्रिटेन से हो रहा था, राइट. द ट्रेड वॉज हैपनिंग विथ चाइना एंड विथ ब्रिटेन, नॉट विथ इंडिया. फिर डिस्पैच फ्रॉम इंडिया, ही स्टार्टेड डिस्पैच फ्रॉम इंडिया और ही स्टार्टेड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. He started export from India. So export, dispatch means anything can be dispatched. यहाँ से वहाँ भेजना is dispatching. एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भेजना is dispatching. एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजना is dispatching. But we are involving countries here, right? हम countries की बात कर रहे हैं. And whenever we refer to countries, what we can do is, अगर हम countries की बात करते हैं तो countries के लिए perfect word होता है export. When you buy and sell, when you rather sell, import होता है buy करना, export means selling. When he started selling jute from India to China and Britain, right? So question number 4 का आपका correct answer है option number 5 that says started export from India. Jamshedji started a cloth mill in Nagpur more than 100 years ago. और उसी की वजह से जमशेदजी ने क्या किया? cloth mill start करी 100 साल से भी ज़्यादा पहले. ठीक है. So here we end up with 4th question. Now let's move on to the 5th question. At that time, almost all the dash used to come from Lancashire in England. अच्छा, उस समय में हर चीज़ क्या आती थी? क्या आती थी? Lancashire से आती थी, इंग्लैंड से. What Jamshedji did was praiseworthy. तो हर import आता था. All at the time, almost all the imports, almost all the cloth, almost all the machines, industries of goods. किसके बारे में हम बात कर रहे थे? खुद सोचो, किसके बारे में हम बात कर रहे थे? अभी हमने बोला ही ओपनड अ क्लॉथ इंडस्ट्री, राइट. क्लॉथ की फैक्ट्री उन्होंने खोली थी, क्लॉथ की फैक्ट्री खोली थी. तो ऑब्वियसली बात है उस समय में जो लैंकाशायर से क्या आता था, इंग्लैंड से कपड़ा ही तो आएगा ना. और इसी वजह से वो कह रहे थे जो क्लॉथ वहाँ से आता था, उन्होंने नागपुर में एक फैक्ट्री इसकी ओपन कर दी. तो क्लॉथ की ही फैक्ट्री ओपन करी और इसी वजह से जो भी उन्होंने किया वो बहुत प्रशंसनीय है. दैट इज एब्सोल्युटली प्रेजवर्दी एंड देयरफॉर क्लॉथ इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. तो 5वें क्वेश्चन के लिए आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्लॉथ. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में आएगा कि क्लॉथ और क्लोथ्स में डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे प्लूरल ही तो है मैम, यस लगा दिया प्लूरल हो गया. नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. क्लॉथ इज जस्ट अ कपड़ा, जो मीटर्स में कपड़ा मिलता है ना, उसको हम क्लॉथ बोलते हैं. बट क्लोथ्स वो होता है जो हम पहनते हैं. दैट मीन्स स्टिच्ड क्लोथ्स. स्टिच्ड गारमेंट्स जो हैं आपके, वो क्लोथ्स कहलाते हैं. जो स्टिच्ड गारमेंट्स है जो आप पहन रहे हो. एंड क्लॉथ इज जस्ट अ जो कपड़े का थान होता है जिसमें ढेर सारा कपड़ा होता है, जो स्टिच्ड नहीं है, अनस्टिच्ड है. अनस्टिच्ड है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्लॉथ. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ एंड क्लोथ्स, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगला क्वेश्चन चेंज करेगा आपके क्वेश्चंस के पैटर्न को भी. So here it is, question number 6 to 10. अब आएगा pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. अब आपको बताना है कि जो blank दिया हुआ है या जो sentence दिया हुआ है उसके लिए perfect blank कौन सा होगा या perfect option कौन सा होगा. देखो, programs aimed for development, with development, by development
एट डेवलपमेंट, इनटू डेवलपमेंट। अब खुद आइडेंटिफाई करिए क्या लगेगा। एम्ड जो वर्ड है, एम्ड, ये देख लो ब्लैंक से पहले क्या दिया हुआ, एम्ड। नाउ एम्ड इज अ वर्ब विच इज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, मतलब एम्ड के साथ कुछ और नहीं लगता, बस एक ही प्रेपोजिशन लगता है। आई एम्ड at it, I aimed to it, I aimed for it, I aimed with it, I aimed by it, I aimed into it। क्या होगा, I aimed के साथ सिर्फ और सिर्फ, इसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। Why? Because जब आप एम, जब आपको पता चल जाता है यू हैव अ वर्ब और उस वर्ब के बाद फिक्स प्रेपोजिशन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वर्ड एब्सटेन, तो एब्सटेन के साथ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगती है, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एब्सटेन के साथ जैसे फ्रॉम लगता है वैसी एम्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ एट का यूज होता है, विच मेक्स ऑप्शन नंबर 4 एज योर करेक्ट आंसर। दैट सेज प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट शुड कंसिडर ऑल राउंड डेवलपमेंट रादर दैन ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो प्रोग्राम्स जो डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं या फिर प्रोग्राम किए जाते हैं, उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना चाहिए, हर चीज़ में डेवलपमेंट देखना चाहिए, ना सिर्फ इकोनॉमी का डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, चिल्ड्रन डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वुमेन डेवलपमेंट भी होना चाहिए, फाइनेंशियली डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट इन ऑल प्रोस्पेक्ट्स, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, so the correct answer is question number for question number 6 is option number 4 at. Now let's move on to the 7th question. Again pollution has an dash effect on health. अब देखो an लगा हुआ है ना, ब्लैंक से पहले an लगा हुआ है, so obviously यहाँ पे वोवल साउंड यूज होगा, बट ये किसी हेल्प का नहीं है क्योंकि इंट्रिंसिक भी वोवल साउंड है, इनएविटेबल भी, एडवर्स भी, एक्टिव भी और अनरिकवरेबल भी। फॉर दिस रीजन व्हाट हैपेंस इज, आप क्या करेंगे, अब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, पोल्यूशन हैज़ एन डैश इफेक्ट ऑन हेल्थ, मतलब पोल्यूशन हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है। नाउ यू नो व्हाट पोल्यूशन इज, राइट। तो पोल्यूशन का हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, व्हेन वी रेफर टू द वर्ड इफेक्ट, जब हम इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट से पहले एक ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, इफेक्ट क्या है और अफेक्ट क्या है। अफेक्ट होता है एक वर्ब, राइट, और इफेक्ट होता है एक नाउन। ठीक है, प्रभाव इज इफेक्ट, प्रभाव डालना इज अफेक्ट। तो अब नाउन है, इसके लिए क्या यूज होगा, ऑब्वियसली बात है एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जब पोल्यूशन है तो पोल्यूशन हेल्थ पे कैसा इफेक्ट करेगा, पोल्यूशन इज अ नेगेटिव वर्ड, हेल्थ पे क्या इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इफेक्ट ही करेगा। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज बिल्ट इन, जो पहले से ही बना हुआ है, या इनर सेल्फ की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक का यूज करते हैं। हैज एन इंट्रिंसिक इफेक्ट, क्या इनर इफेक्ट होता है, नहीं। एडवर्स, एडवर्स मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब खराब, हेल्थ में इफेक्ट डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, वन थिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अवॉइड नहीं करी जा सकती, not avoided और कैन नॉट बी अवॉइडेड, रादर कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। देन वी से एक्टिव, एक्टिव इफेक्ट है, एक्टिव इज अ पॉजिटिव वर्ड। एंड अनरिकवरेबल का मतलब क्या हुआ, जिसको आप वापस नहीं ला सकते, समथिंग विच कैन नॉट बी रीगेन्ड, कैन नॉट बी रीगेन्ड। सो ऑब्वियसली बात है, आप बताओ, कैन नॉट बी रीगेन्ड, क्या हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, डिटॉक्सिफाई करो अपने आप को। क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता, अवॉइड किया जा सकता है। वे मास्क, बाहर जाने से पहले या अंदर आने से पहले ट्राई हैविंग सर्टन थिंग्स जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करें, तो अगेन इनअवॉइडेबल तो नहीं है। ऑपोजिट इफेक्ट जरूर डाल सकता है, व्हेन यू गो आउट इट विल नॉट सूट योर सेल्फ, आपके सेल्फ को वो सूट नहीं करेगा, देयरफॉर यू कैन यूज द वर्ड एडवर्स एंड दैट विल बी अ करेक्ट वर्ड, एडवर्स। पोल्यूशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन health. So question number 7 के लिए option number 2 is absolutely correct. Now let's move on to the 8th question. Before attempting to solve any problem, we must try to dash its root cause. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उस प्रॉब्लम की वजह क्या है, उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्यों हो रही है वो, why does something happen, that is what we need to judge before solving any problem in our lives or in somebody's life, right? So we say before attempting to solve any problem we must try to dash its root cause, identify its root cause, question is its root cause, ignore तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। If you'll ignore it,
इफ़ यू विल इग्नोर द रूट कॉज, अगर आप जड़ की बात करें किस वजह से हुई है, अगर उसको इग्नोर करोगे यू नेवर बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बिकॉज वंस यू सॉल्व दिस, वो है, रूट कॉज इज स्टिल देयर, सो व्हाट हैपेंस इज दिस विल अगेन हैपन, राइट? सो वी विल नॉट इग्नोर इट. कैन वी अटैक अ कॉज? No, we can attack a person, we can attack a living being, but we cannot attack any thought or opinion. Then improve its root cause. क्या root cause को improve करोगे? नहीं, root cause को हटाने की बात करेंगे. We will not improve it. हम improve करने की बात करेंगे. खुद सोचो, are we trying to improve it? No, we will not. So identify, that means we will try to find it. Identify means to consider something, to find something. So obviously before solving a problem you will do what? You will try to consider, you will try to find out the root cause of it. क्यों हुई वो चीज़, कैसे हुई वो चीज़, किस कारण से हुई, उसको हटाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे. So we will try to identify its root cause. So question number 8 के लिए option number 1 is absolutely correct. Now let's move on to the 9th question. His father dashed him for his disappointing performance. Again question क्या है? Negative sense में पूछा गया है. उसके पिता ने उसको क्या किया? उसके पिता ने उसको क्या किया disappointing performance के लिए? उसके पिता ने, obvious सी बात है, if the performance was disappointing, अगर performance disappointing थी तो sentence is in negative form. So father का जो behavior था, फादर का जो बिहेवियर था वो भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. सो हिज फादर रिप्रिमेंडेड हिम, हिज फादर फ्लैटर्ड हिम, हिज फादर एनकरेज्ड हिम, हिज फादर फ्रस्ट्रेटेड हिम, हिज फादर एब्जॉल्व्ड हिम. एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? क्या होता है एब्जॉल्व? मतलब क्या होता है कि वो अब्जॉल्व हो जाए या अब्जॉर्ब हो जाए या फिर मिल जाए. सो हिज फादर ने मिला दिया उसको, उसके पिता ने मिला दिया. नहीं, एब्जॉल्व डजंट मेक अ सेंस हियर, राइट? सो इसको हम हटा देते हैं. देन फ्रस्ट्रेटेड, क्या उसके पापा ने फ्रस्ट्रेट किया उसको? उसको फ्रस्ट्रेट नहीं किया. द फादर हिमसेल्फ कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड. पापा खुद फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं लेकिन उसको कैसे फ्रस्ट्रेट करेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है, फ्रस्ट्रेट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नेक्स्ट वी हैव एनकरेज्ड. एज आई सेड द सेंटेंस गिवन ओवर हियर इज इन नेगेटिव फॉर्म. वी कैनॉट यूज एनकरेज्ड. वाई? एनकरेज्ड मीन्स टू प्रोवोक समबडी और टू abet somebody to a better task. ठीक है, किसी को फोस्टर करना, कुछ अच्छा करने के लिए उसको encourage करना. And then flatter is again a positive, rather not positive but उससे अच्छा बोल रहे थे. So was the father saying good to his son for his disappointing performance? No. पापा अच्छा नहीं बोल रहे थे. So flattered and encouraged are also eliminated. Next we are left with reprimanded. Reprimanded, reprimand का मतलब क्या होता है? This defines rebuke. Rebuke means formal disagreement. Reprimand मतलब formal disagreement. That means he was not at all satisfied with his performance. तो obviously बात है कि उसके पिता ने reprimand किया उसको. That means he was not satisfied with the performance. उन्होंने सीधा बोल दिया कि I do not like this kind of behavior. He rebuked it. He reprimanded it. So the correct answer is option number 1, that is reprimanded. Next question is on your screen now. She could dash punishment only because of the judge's generosity. अच्छा, उसको punishment, उसकी punishment क्या हुई? क्योंकि जज की जेनरोसिटी थी. बिकॉज ऑफ द जज जेनरोसिटी, मतलब जज अच्छे थे, जज जेनरस थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे. ही वॉज लीनियंट टूवर्ड्स दैट लेडी और दैट पर्सन. तो वहाँ पर क्या लगना चाहिए? ही कुड गेट पनिशमेंट, ही कुड इम्प्रूव पनिशमेंट ओनली, ही कुड एनकरेज पनिशमेंट ओनली, ही कुड control punishment only, he could escape. Now see, now as you can see, she could dash punishment only because of the judge generosity. तो हमने ये बोल दिया कि could is a modal verb. Whenever we have a modal verb, it is always followed by verb's first form. ये हमेशा verb की first form से follow होता है, ठीक है. With this you will eliminate the third option, that is encouraged. जिसका मतलब क्या हुआ कि आप encouraged को eliminate कर सकते हो. This is not given in verb's first form. Now she could get punishment, she could improve punishment, she could control punishment, or she could escape punishment. Now no victim, or rather no the person who is guilty of something, जो भी person guilty है किसी चीज़ के लिए, वो इंसान punishment को improve नहीं कर सकता, वो खुद improve नहीं कर सकता. So this is also eliminated. She could control the punishment. Can she control the punishment? क्या guilty
कंट्रोल कर सकता है पनिशमेंट को? नहीं. द पर्सन हु इज गिविंग द पनिशमेंट वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जिसको मिल रही है ही कैन नॉट कंट्रोल इट. देन वी हैव गेट द पनिशमेंट और एस्केप द पनिशमेंट. नाउ वी हैव द वर्ड ओनली गिवन. ओनली गिवन, अगर जज जेनरस ना होता, हमने बोला है जज जेनरोसिटी है, देयरफॉर वी आर राइटिंग एस्केप, वो बच सकती है. शी कुड एस्केप पनिशमेंट ओनली बिकॉज ऑफ द जज जेनरोसिटी. अगर जज जेनरस हुआ, अगर जज लीनियंट हुआ तो ही वो पनिशमेंट से बच सकती है, अदरवाइज उसको मिलेगी. और कहते हैं शी कुड गेट पनिशमेंट ओनली, अगर वो उसको पनिशमेंट मिलेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जज जेनरस है. जेनरस इज अ पॉजिटिव वर्ड, सो वी कैन नॉट यूज गेट हियर, राइट. उसको पनिशमेंट मिलेगी नहीं, वो पनिशमेंट से बच सकती है. सो ऑप्शन नंबर 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now let's move on to the next question that will be coming on full screen. पूरे स्क्रीन पर आएगा, जिसपे हमें रीअरेंजमेंट को सॉल्व करना है. तो पहले रीड करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. It says Onami was very strong and knew the art of wrestling. In his private spells, he defeated even his teacher, but in public he was so timid that his own pupils defeated him. कह रहे हैं उनके जो ओनामी थे, ओनामी was somebody who was very good in wrestling, उन आर्ट ऑफ रेसलिंग में. उनके प्राइवेट स्पेल्स में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने टीचर को भी क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. बट इन पब्लिक में वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ साबित हुए थे, या फिर बोलें कि उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि दैट his own pupils defeated him. उनके खुद के लोगों ने उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया. The teacher advised him saying, your name means great waves. Imagine that you are huge waves sweeping everything before you, swallowing everything in your path. Do this and you will be the greatest wrestler in the country. तो उनकी टीचर ने उनको एक बार ये चीज़ समझाई थी कि तुम्हारे नाम का मतलब, ओ नामी, तुम्हारे नाम का मतलब ये है कि ग्रेट वेव्स, मतलब बहुत बड़ी वेव है तुम्हारे नाम में. इमेजिन, इस चीज़ को सोचो कि अगर तुम एक ह्यूज वेव हो जो हर चीज़ से ऊपर निकलते हुए चली जा रही है, जो भी चीज़ तुम्हारे रास्ते में आ रही है तुम उसको निगल जा रहे हो, ख़त्म कर दे रहे हो, तो तुम्हें ऐसा करना है. डू दिस एंड यू विल बी द ग्रेटेस्ट रेसलर इन द कंट्री. आप ये काम करिए और पूरी कंट्री में आप सबसे अच्छे रेसलर बन जाएंगे. देन ओनामी सून रजिस्टर्ड फॉर अ रेसलिंग मैच एंड वन. और ओनामी ने जल्द ही अपना नाम एक रेसलिंग मैच में रजिस्टर कराया और वो जीत गए. आफ्टर दैट नो वन इन जापान वॉज एबल टू डिफीट हिम. और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उनको डिफीट कर पाता. सो सून वर्ड लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. फिर डी में लिखा है इन द अर्ली डेज ऑफ द मीजी एरा देयर lived a well-known wrestler called Onami Great Waves. कह रहे हैं, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जैसा लग रहा है कि मीजी एरा के अर्ली डेज में वहाँ पर एक आदमी, एक वेल नोन रेसलर रहता था जिनको काफ़ी लोग जानते थे, जिनका नाम था ओनामी ग्रेट वेव्स. तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है, तो इसको डी वाले को हम अलग रख देते हैं. फिर ई लिखा है इन द डेज दैट फॉलोड. अब इन द डेज दैट फॉलोड का मतलब हुआ कुछ दिन जो उसके आगे थे. If we are talking about the following days, so obviously उससे पहले क्या हुआ, what was given as the date or as the days that needs to be mentioned. So in the following days आप नहीं लिख सकते पहले में. फिर Onami felt he should go to a Zen master for help. He approached Hakuju, wandering teacher, and told him of his great trouble. Now यहाँ पर ये समझ में आ गया है. तो अब देखो एक ही सेंटेंस था जो हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लगा एंड दैट विल बी डी. तो डी को हम सबसे पहले लिखेंगे कि अर्ली डेज, मीजी एरा के अर्ली डेज में क्या हुआ. अर्ली डेज में व्हाट हैपेंड वाज देयर लिव्ड अ वेल नोन रेसलर. बहुत जाने माने रेसलर रहते थे जिनका नाम था ओनामी ग्रेट वेव्स. आफ्टर दैट अब ओनामी का क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे. इंट्रोडक्शन कहाँ दिया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव द सब्जेक्ट गिवन इन डी, है ना. सब्जेक्ट के साथ हमने लॉजिकल पेयर में आपको बताया था कि इंट्रोस का एक साथ आएगा. नाउ द इंट्रोडक्शन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर ए. ओनामी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड न्यू द आर्ट ऑफ रेसलिंग. वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उनको आर्ट ऑफ रेसलिंग पता थी. इन हिज प्राइवेट स्पेल्स, वो खुद की बातों में अगर बोले तो ही डिफीटेड इवन हिज टीचर. उन्होंने अपने टीचर तक को डिफीट कर दिया था. बट इन पब्लिक ही वॉज सो टिमिड दैट हिज ओन पीपल्स डिफीटेड हिम. लेकिन पब्लिक में उनके खुद के पीपल्स ने उनको डिफीट कर दिया. ठीक है, डिफीट कर दिया. वो स्ट्रॉन्ग थे, उनको डिफीट कर दिया. तो डिफीट करने के बाद उनका स्टेप क्या था. आफ्टर बीइंग डिफीटेड व्हाट ही डिड वाज,
ओनामी फेल्ट, फिर उनको एहसास हुआ किस चीज़ का? He felt he should go to the Zen master for help. After being defeated, उन्होंने help लेने का step उठाया and that is given in option number F. Onami felt he should go to a Zen master for help. He approached Hakuju, the wandering teacher, and told him of his great trouble. उन्होंने क्या किया? अपनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया हकुजू को. फिर उसके बाद द टीचर एडवाइज्ड हिम, है ना, वैंडरिंग टीचर था. द वर्ड मेंशन इन एफ इज वैंडरिंग टीचर. वैंडरिंग टीचर था इनका. अब यही टीचर की एडवाइस किस में मेंशन्ड है? इसी टीचर का जिक्र हुआ है बी में. द टीचर वी आर रेफरिंग टू, उसी समय टीचर ने बोला कि तुम्हारा नाम है ग्रेट वेव्स. तुम सोचो अपने आप को कि तुम जहाँ भी जाओगे हर चीज़ को हटाते हुए चले जाओगे. जहाँ भी जाओगे हर चीज़ को, जो भी चीज़ तुम्हारे रास्ते में आएगी उसको तुम स्वॉलो करते हुए चले जाओगे. ये करो एंड यू विल बी द ग्रेटेस्ट रेसलर इन द कंट्री. और इसके बाद तुम कंट्री के सबसे अच्छे रेसलर बन जाओगे. ठीक है, तो ये एडवाइस उनके टीचर ने दे दिया. आफ्टर दैट जैसे उन्होंने एडवाइस माना तो एडवाइस का जो ऑप्शन है वो बी में दिया है और इसी एडवाइस को फॉलो कराया है ई वाले ऑप्शन में. दैट इज ऑल्सो रेफरिंग टू द एडवाइस इन द डेज दैट फॉलोड. ओनामी In the days that followed, Onami meditated on the advice given by the Zen master. जो भी Zen master ने उनको एडवाइस दी उस एडवाइस पे उन्होंने काम किया आगे आने वाले दिनों में. And the last option will be C. Onami soon registered for a wrestling match and won. और उसी के बाद ओनामी ने अपने आप को रजिस्टर कराया एक रेसलिंग मैच के लिए और वो जीत गए. After that, no one in Japan was able to defeat him. और उसके बाद जापान में कोई भी उनको डिफीट नहीं कर पाया था. So the correct sequence will be DAFPEC. तो हमने किस चीज़ की बात करी? अब हमने बात करी पूरे ओनामी नाम के रेसलर की और इस रेसलर को क्या उसकी स्टोरी थी वो डिफाइन करी गई DAFBEC में. तो D में था सब्जेक्ट ओनामी, वो क्या थे उनका इंट्रोडक्शन A में दिया गया. वो डिफीट होने के बाद हेल्प लेने गए अपने टीचर से, दैट इज़ F. और उसी टीचर का जिक्र हुआ, उन्होंने एडवाइस किया क्या? बी में. इसी एडवाइस को उन्होंने फॉलो किया ई में और उसके बाद उन्होंने रजिस्टर किया अपना नाम एक रेसलिंग कंपटीशन में और वो उसके बाद जीत गए. उसके बाद जापान में उनको कोई भी नहीं हरा पाया. दैट वाज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. आई सपोज अब आपको क्लोज टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स आपने सॉल्व कर लिया. क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने का जो तरीका था दैट वाज वन और द अदर वे सिमिलर. रीअरेंजमेंट को भी आपको इसी तरह से करना है. वन बाय वन यू हैव टू रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, व्हाट, देन यू विल फाइंड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ जो इंट्रोडक्टरी है दैट यू विल प्लेस एंड देन यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग एंड हैविंग द क्लूज एसोसिएटेड विद ईच अदर लाइन in a row. तो इस तरह से आप तीनों एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हो. नाउ आई वुड सजेस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. विद दिस यू कैन जॉइन मी टुमारो फ्रॉम 2 to 3 एट हैंगआउट, ताकि आपके डाउट सेशन है हैंगआउट पे 2 से 3 होगा. If you want to solve or if you want to discuss any of your doubts, you can come and discuss it. Thank you so much for joining us. Keep loving us because we love you. Bye-bye. Take care. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon दबाइए, Adda247 की सारी notifications पाइए. Adda247, government job in your pocket.